Yes. What was the homework? Homework is, I think homework was till density questions. Okay. Previous homework was till density question, so it is in for every objective, है ना? I doing question number 1 to I think 47. This is पहले 20 मैंने पहले दे चुका हूँ and this is I have given. और शायद फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव में आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 टू कोई मुझे याद दिलाएगा कितना था? सर 18. So these are the till here we have done this part. Now this is previous homework. ठीक है, अब याद रखना. Now, so today we are going to start, that is stoichiometry. And इसमें पहले हमें समझना है कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन. तो stoichiometry is मतलब like this is related with chemical reaction. So the first thing we are going to understand balancing of a chemical reaction. So I think all of you know this part कि कैसे balance करते हैं, right? Balancing of a chemical reaction. I will give you example and you have to balance it. So first example is, let's say C2H6 plus O2 gives CO2 plus H2. Just balance it. पीडीएफ शेयर किया गया है आप लोगों को. क्वेश्चन पीडीएफ शेयर किया गया है. मोल कॉन्सेप्ट का पहला टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर, दूसरा है मोल कॉन्सेप्ट. उसमें आई थिंक पेज नंबर 127 समथिंग के आसपास है, देख लेना. तो व्हाट इज हर्ष, बताओ मुझे क्या है बैलेंसिंग में? C2H6 का क्या है? C2H6 का सर C2H6 plus 2CO2 gives 2CO2 plus 4. फिर से बोलो, नहीं आया सर. 2C2H6 अच्छा हाँ भैया. प्लस कौन बोल रहा है? आर्या. आर्या, वेरी गुड. तो देखो जिन लोगों से ये हो गई और जिनसे नहीं हुई, ये म्यूट कर लो यार, है ना, जो भी है. जिन लोगों से ये हो गया अच्छी बात है, जिनसे नहीं हुआ वो सुने ध्यान से. So what we do is we are going to check how many number of atoms here and how many number of atoms are here. So for carbon here we are having 2, so we are going to write 2 because 2 carbon atoms are here. Carbon atom और कहीं पे भी नहीं है. Now carbon atoms are balanced. Now we have to see what is how many hydrogen atoms are there. So over here 6 hydrogen atoms are there, so you are going to write 3 because 2 are there. 2 into 3 6. अब जो लड़ाई है वो केवल ऑक्सीजन की है. देखते हैं how many oxygen atoms are there. So 2 into 2 4, 3 into 1, so this is 3 oxygen, so this is 7 oxygen. But they are asking what is the O2 over here, not oxygen. So that's why you have to write this is equals to 7 by 2 O2. So that's how 7 by 2 into 2 is 7. So you are going to write 7 by 2. Now you can multiply it by 2 because this is in fraction. So you can write 2C2H6
plus 7O2 gives 4CO2 plus 6H2. Or you can also write like this, doesn't matter, but ये ज़्यादा better है, ठीक है? समझ में आया बैलेंसिंग कैसे करनी है, राइट? पहले एक एटम को से लेके चलते हैं. चलो एक और एग्जांपल. बैलेंस इट. So हम्म Al2O3 plus 6HCl, हम्म 2AlCl3 plus 3H2O. ठीक है, वेरी गुड. ठीक है, तो ये हो गया. नेक्स्ट एग्जांपल. बैलेंस इट. इसको बैलेंस करो. Sir, हम्म Cu plus 4HNO3 is equals to CuNO3 twice plus 2NO2 plus 2H2O. Any other example? Any other answer? ठीक है, तो ये सही है. How we have come to this part? Let's say. तो पहले हम क्या करेंगे इसको मैं बता देता हूँ. What we are going to do? We will see how many Cu are there. So one Cu is there. Okay, no problem. How many nitrogen? But nitrogen is 2 source. Okay, so over here. So that is, let's say over here you can count how many nitrogens are there. So this is going to be 2 already are there. And then you have to think whether I can write 3, then this is going to be 1, 4, 5, anything. So now this is dependent on other, let's say other element or other compounds, right? So it's not going to be directly, it is going to dependent on what is going to happen here. So let's say just for a moment that we don't know anything over here, but we know this is Cu and Cu is going to be 1. So now let's say we will say over here this is X, let's say, और ये आपका H2O था तो ये Y. Now I will make an equation, right, over here. So what is the equation first, right? और यहाँ पे ये Z ले लो, जो भी है. So this is going to be over here. You can say that nitrogen over here. This is 2. So this is 2 plus X. That should be Z for nitrogen. And for hydrogen, this is going to be over here 2y. 2y is also equals to Z. This is for hydrogen. But इनके लिए
जो मेन इंपॉर्टेंट इक्वेशन को सॉल्व करने वाला है वो है ऑक्सीजन. हाउ मेनी ऑक्सीजन आर देयर? दैट इज 3Z. Now you can write how many are there. So this is 2 into 3, 6, and this is 4x, and this is y. So this is 3Z is nothing but 6 plus 4x plus y. I am applying this xy method because obviously you can apply hit and trial method. जैसे अभी आपने 3 देखा तो 3 से करके देखो, फिर 4. बट इसमें कई बार क्या होता है, आपको लगेगा कि सर एक से ज्यादा बार बैलेंस भी कर सकते हैं, राइट? सो फॉर दिस पर्पस यू कैन अप्लाई लाइक दिस टाइप ऑफ मेथड. और इसमें रिडॉक्स रिएक्शन भी लगता है. आगे हम आपको पढ़ाएंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन, उसमें समझाएंगे कि कैसे हम इसको और बैलेंस कर सकते हैं. तो अभी के लिए यही है. Now what is going to happen over here, you are going to let's say write something कि यहाँ पे जैसे 2y है तो 2y equals to 2 plus x हो गया, 2 plus x equals to 2y. So you can replace any of this. let's say एक के रेस्पेक्ट में आप लिख लो, तो आप x के रेस्पेक्ट में अगर लिखना चाहते हो या y के रेस्पेक्ट में लिखना चाहते हो तो ये क्या हो जाएगा, x1 plus x/2 is y. और z को भी आप क्या कर लो, x के रेस्पेक्ट में लिख लो, तो ये क्या हो जाएगा, 2 plus x is z. then we can write 6 plus 4x plus 1 plus x/2. then it is going to be 3 into and now x plus 2, so this is going to be 3x plus 6, 3x plus 6. तो ये कट गया and this is going to be 9. नहीं, कुछ मेरा गलत आ रहा है क्या? I have done something wrong. 2 plus x ये मैंने सही लिखा है. हाइड्रोजन मैंने सही लिखा है. That is 2y equals to z. And oxygen 3z. And this is 2 into 3 6 plus 4x plus y. ठीक है. So now this is 9x/2 plus 1 is equals to 3x. So this is going to be ये माइनस आ रहे हैं ना, ये माइनस क्यों आ रहा है? एक मिनट. 6 प्लस की वैल्यू हमारी कितनी 2 थी, तो ये कितना देगा into 4 8 plus 2, so this is 16. ये मैंने इक्वेशन कुछ गलत लिखी है, it's not coming. So oxygen 3z 6 सॉरी यहाँ 4x लिखा है, देखो ये 2x है. That's how this is wrong. Okay, anyway, so this is what I have made a mistake. You have to be careful in this part. Now we can write this equation was wrong. This is 2x plus y, you know, 2 into x plus y equals to 3z. Now you can replace y equals to, I have written, that is 2x plus y is equals to 2y. So you can write y is equals to 1 plus x/2. Now you can put the value. So this is going to be 6 plus 2x plus 1 plus x/2 is equals to 3 into 2 plus x. Anyway, so you can write 7 plus 5x/2 is equals to 6 plus 3x. So from here, if you are going to see, then x/2 is equals to 1 and x equals to 2. Just put the value of x and then you will know later values. So this is going to be 4, this is going to be 2, and this is going to be 2. थोड़ा ये इक्वेशन लेंदी हो गया, लेकिन ये ऐसे आ सकता है. ठीक है, मैंने ये ऐसा क्यों बोला है ना, इसको आप ऐसे बैलेंस करोगे तो आसान रहेगा. ठीक है, लेकिन चलो आगे चलते हैं. आगे
नेक्स्ट, तो कितने लोगों का आया ये आंसर? और इनका ये आ गया आंसर, कोयना का आ गया, यशस्वी आर्या का आ गया, 3 गर्ल्स आगे हैं, विदिता का आ गया इस क्लास में, दीक्षा का आ गया, मतलब सारी गर्ल्स का आ गया, केवल एक लड़का है ये आदित्य, आर्यन, बस। ओके, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, यस बोलो बेटा, यू कैन अनम्यूट एनी टाइम। किसी ने हाथ उठाया था? नहीं, ठीक है, अच्छा अच्छा, लेट्स से, तो ये केमिकल रिएक्शन है। इन फैक्ट व्हाट वी कैन से, so hence we can represent a balanced chemical reaction like reaction as AA plus BB gives CCDD, है ना? जैसे यहाँ पे जो ये बात आप लिख रहे हो, नंबर लिख रहे हो यहाँ पे 1 4 2 2, इनको ऐसे हम लिख सकते हैं A, तो यहाँ पे वेयर A, B, C, D are called stoichiometric coefficient of A, B, C and D respectively. So for mole concept, what you have to do is you have to write a balanced chemical reaction first. You always have to check कि reaction balance है या नहीं है. अगर reaction balance है, then you can write what is stoichiometric coefficient. So let's say एक example लिखते हैं फिर से. N2 plus 3H2 gives 2NH3. So here stoichiometric coefficients are 1, इसको short में मैं SC लिख रहा हूँ, 3, 2, है ना. One stoichiometric coefficient is representing one molecule of N2. So that means कि एक molecule of N2, जैसे मैंने ये बताया हुआ अभी है मास कंजर्वेशन के टाइम पे, मान लो ये एक नाइट्रोजन का molecule है, and you are having 3, let's say hydrogen, let's say over here like molecule like this. So now what I am doing is I am going to make ammonia. So this is ये आपके क्या हो गए, नाइट्रोजन नाइट्रोजन है और ये आपके हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, ठीक है. तो इस तरह से ये क्या हो गया, आपका अमोनिया बन गया. तो एक मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके 2 मॉलिक्यूल बनाता है. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, है ना. यू कैन से मॉलिक्यूलर रिलेशन क्या है, वन मॉलिक्यूल of N2 reacts with थोड़ा सा जगह बढ़ा लेते हैं. So one molecule of N2 reacts with 3 molecule of H2 to form 2 molecule of NH3. So you can understand this stoichiometric coefficient represent molecules ratio आपस में, कि एक 3 से रिएक्ट करेगा 2 बनाएगा. समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं? ठीक है. Now what we can write is mole relation also, because molecule relation means mole relation.
आप अगर इसमें Na से मल्टीप्लाई कर दो तो सब में Na से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मोल रिलेशन इज गोइंग टू बी कि 1 मोल N2 will react with 3 mole H2 to form 2 mole अमोनिया। ये बात आ रही है समझ में? एक मॉलिक्यूल के लिए अगर हमने लिखा रिलेशन 1 3 से रिएक्ट करता है तो 10 किससे करेगा, 30 से। Na किससे करेगा, 3 Na से। Na मतलब अवोगाद्रो नंबर, अवोगाद्रो नंबर किससे करेगा, 3 Na से। तो 1 मोल किससे करेगा, Na को बोलते हैं 1 मोल, तो 3 Na का मतलब हो जाएगा 3 मोल, है ना? ये बात समझ में आ रही है? नाउ द मोमेंट यू नो मोल रिलेशन, तो अब मैं कोई भी आपको यहाँ पे मोल्स दूंगा, मैं बोलूँ बताओ कि 0.5 मोल्स ऑफ अमोनिया मैंने लिया तो बताओ कितना, सॉरी 0.5 मोल्स ऑफ मैंने N2 लिया तो बताओ कितना अमोनिया बना। देन यू कैन से कि 1 से बनेगा 2, तो 0.5 से बनेगा 0.5 into 2, that is 1. So that is you can apply unitary method. समझ में आया? हाँ ना, क्योंकि अब मैं क्वेश्चन देने वाला हूँ इस पे। हाँ ना बोलते जाओ, यस सर, नो सर। Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now you will solve the question. So question is, let's say find number of moles of hydrogen required to completely react 5 moles of N2. तो आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट भी लिख सकते हैं हम। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2, है ना, required to form 5 moles of ammonia. मान लो ये 2 क्वेश्चन है, अलग अलग है। राइट, करेक्ट। 15, तो पहला आंसर आ गया 15। आपको बताए N2 प्लस 3H2 ये रिएक्शन है, आपको बैलेंस रिएक्शन पता है, दिस इज बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। So you know stoichiometry, you know this is 1, this is 3, this is 2. So you can say okay, this is 1, this is 3, this is 2, then there is unitary method. हालांकि यहाँ पे तो वैल्यू इतनी आसान है कि आप डायरेक्टली लगा सकते हो, लेकिन मैं यूनिटरी मेथड बता रहा हूँ कि जब वैल्यू डेसिमल में आए, कभी फ्रैक्शन में आ जाए, तो कैसे करेंगे। जो नोन है वो x है ना, जो भी नोन स्पीसीज है ना, नोन गिवन, उसके रेस्पेक्ट में आप नोन गिवन जो भी है उसको आप x मान लोगे, उसके रेस्पेक्ट में रिलेशन निकालोगे। तो यहाँ नोन क्या है, 5 मोल्स ऑफ N2 नोन है, तो हमने लिख लिया रिलेशन क्या हो गया, x is going to give 3x. Now you can put what is x, है ना, x के रेस्पेक्ट में हो गया 1 से 3, x के 3x, ये यूनिटरी मेथड है। जो भी नोन है या गिवन है क्वेश्चन में उसको मान लेंगे x। तो 1 से बना 3, तो x से क्या बनेगा 3x, तो बस हो गया आंसर। एंड नाउ x is equals to 5, 3x कितना हो जाएगा, 3 into 5, 15. Now similarly what is given here, अमोनिया, ये दिस इज फर्स्ट पार्ट ए। मान लो अमोनिया के मोल्स दे रखे थे, देन अगेन यू आर गोइंग टू राइट स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट क्या है, 1 3 2। नाउ यू हैव टू राइट यूनिटरी मेथड, तो पहले इसको 1 बनाना है, यहाँ तो ये 1 था, लेकिन अभी ये जो नोन है वो 2 है, तो 2 is reacting with 3, then 1 is going to react to form 1 is going to, let's say, formed by 3/2 moles of hydrogen. तो x अगर होगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3/2x, इसकी वैल्यू डाल दो 5, so this is going to be 3/2 into 5, that is 15/2. क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत? आना, एजल, आयुष, देव, समझ में आया?
आंसर नहीं आया क्योंकि तुम लोगों का, धक्का लगाओ यार। आगे समझ में? अब टफ क्वेश्चन देंगे तो चलेगा? हाँ ना? अरे यार फिर वही बात है, तुम लोग बोलते नहीं हो हाँ ना, चलेगा टफ? हाँ सर। ठीक है चलो। चलो अब मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन। फाइंड moles of oxygen required to burn 3 moles of methane completely। तो आपको पहले इसकी बर्निंग रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, है ना? तो इसमें मैं हिंट दे रहा हूं, नोट। कंबशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन इज हाइड्रोकार्बन always form CO2 and H2O as product। बस आप बनाओ, बैलेंस करो और बताओ। देखो हाँ, इसको हम डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एक आंसर आ गया मेरे पास, वेरी गुड, कोई ना। करेक्ट, ये तो रिएक्शन है। अब इसमें बताओ कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लगेंगे? सर 6 moles। वेरी गुड। तो देखो जिन लोगों के आंसर नहीं आए उन्होंने जरूर कहीं ना कहीं समझने में, सॉल्व करने में गलती करी है। तो वो गलतियां आपको बार बार हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आप ना करो। CH4O2 CO2 H2O, ये हमें पता है। Now you have to balance, so this is going to be over here 2O2 and this is 2H2। this is balance। कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन बैलेंस। this is your balance reaction। now you know stoichiometry 1 2। क्या पता है आपको? CH4 पता है, तो x 2x, x की वैल्यू 3, 2x की वैल्यू 6, बस हो गया आंसर। कितने मोल चाहिए? O2 के 6। now इसी में बी पार्ट, if air contains 20% oxygen, find moles of air required to burn, है ना, moles of oxygen required to burn 3 moles of methane। तो क्या हो जाएगा आंसर? सॉल्यूशन, एयर के 10 मोल में कितना होगा? 10 मोल एयर कंटेन 2 मोल, ठीक है, करेक्ट ना? 10 कंटेन्स 2 मोल, 2 मोल्स ऑफ O2। तो 1 मोल ऑफ O2 किस में होगा? 5 में। तो 6 मोल ऑफ O2 किस में होगा? 5 into 6 में, that is 30 मोल।
ये बताओ, ये जो ऑक्सीजन है इसका सोर्स क्या है? इन्होंने बोला ऑक्सीजन का सोर्स जो है पुराने वाले क्वेश्चन में, वो आपको मोल्स ऑफ ऑक्सीजन पता है ना? 3 मोल ऑफ मीथेन को बर्न करने के लिए 6 मोल चाहिए, राइट? अब इन्होंने कहा कि ये ऑक्सीजन का सोर्स एयर है, ऑक्सीजन नहीं है, एयर है, और एक एयर के सैंपल में केवल 20% ऑक्सीजन है। 20% ऑक्सीजन का मतलब क्या है? 100 मोल में 20 मोल है, या फिर मैंने यहाँ पे लिख लिया 10 मोल में 2 मोल है, whatever. 10 मोल एयर इज हैविंग 2 मोल्स ऑफ O2. इसका मतलब है 1 मोल ऑफ O2 किस में होगा? 5 मोल्स ऑफ एयर में होगा, ठीक है? तो 1 मोल ऑफ O2 5 मोल में है, तो x मोल ऑफ O2 कितने हो जाएंगे? 5x में हो जाएंगे। x की वैल्यू रख दो 6। आया आ रहा है समझ में? हाँ सर। बस ये हो गया आंसर। चले आगे। चलो, तो यहाँ पे अब नेक्स्ट समझते हैं। अब ये जो मोल मोल रिलेशन है, ये तो एक यूनिटरी मेथड है ही, इसके अलावा एक और मेथड है, उसको बोलते हैं, मतलब उसको अनदर मेथड है, अनदर मेथड। और मैप मोल कैलकुलेशन यू कैन डू, कि जब यहाँ पे लिखा हो AA plus BB gives CC and DD, so we can say कि यहाँ पे अगर स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हमें पता है A, B, C और D, तो then this balance chemical reaction. Then we can write moles of A reacts divided by stoichiometric coefficient of A is equals to moles of B reacts divided by stoichiometric coefficient of B is equals to moles of C formed divided by stoichiometric coefficient of C equals to moles of D formed divided by stoichiometric coefficient of D. So this is, let's say अब इसी को अप्लाई कर रहे हैं, hence ये क्वेश्चन था CH4 plus 2O2, ये CO2 plus 2H2O. So stoichiometric coefficient we know that is 1, 2, 1, 2. Anyway, we have to, हमें, अच्छा ये जो 4 इक्वलिटी लिखी हुई है इनमें एक साथ चारों नहीं लगानी है, एक हमें नोन होगी, एक हमें अननोन होगी, उन दोनों के बीच में लगानी है, ठीक है? तो हमें जैसे CH4 के बारे में पता था और O2 के बारे में पूछा गया था, तो इन दोनों के बीच में लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा? तो मोल्स ऑफ CH4 रिएक्टेड divided by stoichiometric coefficient is equals to 1 is moles of O2 reacted divided by stoichiometric coefficient. So this is 3/1. ये आपको पता नहीं है, मान लो ये x है divided by 2, तो ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6। समझ में आया? हाँ भाई, ना भाई? Yes, sir. ठीक है, ये दूसरा मेथड है, तो ये आप इसको हाईलाइट कर सकते हो। यूनिटरी मेथड थोड़ा सा फास्ट है, ये वाला मेथड भी फास्ट है, डिपेंडिंग ऑन कैलकुलेशन कौन जल्दी कर लेता है। सर ये स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट गेल-लुसाक्स लॉ जैसा ही है ना? हाँ वही वहां पर, लेकिन रेशियो था, यहाँ रेशियो नहीं है। जैसे यहाँ पे मान लो किसी का स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऐसा आता 2 4 2 4 आता, तो हम उसको 1,2 1,2 ऐसा नहीं लिखेंगे, वैसे लिख भी सकते हैं, हाँ कॉमन आ जाएगा, हाँ वैसा ही है गेल-लुसाक्स।
जो लोग नए आए हैं आज उनको समझ में आ रहा है? जो लोग नए हैं, हाँ सर। ओके। Yes, sir. तो देखो, अब ये बात हो गई, ये तो है सिंपल केस, मतलब रियरली कोई ऐसा पूछता है। क्वेश्चन तो थोड़े ट्रिकी आते हैं, है ना? तो ट्रिकी क्वेश्चन में क्या होगा, अब यहाँ मास दे रखा होगा, जैसे मान लो मोल्स ना देख के मास दे रखा है, तो कैन यू कन्वर्ट मास इनटू मोल्स, है ना? जैसे मैंने बोला कि 2 ग्राम H2 दे रखा है, तो 2 ग्राम H2 का मतलब क्या है? H2 का मोलर मास, H2 के 1 मोल का मास 2 ग्राम है, तो 2 डिवाइड बाय 2, 1 मोल आ गया। ऐसा कुछ हो सकता है। तो अब बात आती है, वो है सेकंड पॉइंट, दैट इज मास रिलेशन, मोल्स मास रिलेशन। पहले हमने मोल मोल रिलेशन पढ़ लिया, या फिर और मास मास रिलेशन। और इसको करने के तरीके काफी हैं, आप मोल्स में कन्वर्ट कर लो, डायरेक्ट मास लिख लो, तो मैं दोनों मेथड बताऊंगा। तो जैसे मान लो मैं ये वाले एग्जांपल लेता हूँ, मीथेन वाला आसान है, स्टोकियोमेट्री भी आसान है। सो लेट्स से मेरा एग्जांपल है CH4 plus 2O2 gives CO2 plus 2H2। अच्छा, यहाँ पे याद रखना है, दिस इज गैस, दिस इज गैस, दिस इज गैस, बट दिस इज लिक्विड। ठीक है, ये आगे आएगा तो दोबारा समझाएंगे ये बात। ठीक है, वाटर जो है वो लिक्विड है, राइट? नंबर ऑफ मोल्स इज टोटल गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, करेक्ट। अब मान लो, है ना, ये क्या है आपको फॉर्मूला में बता दे रहा हूँ, है ना, टोटल मास इज इक्वल्स टू, you can say number of moles into molar mass, या फिर you can write number of moles is equals to total mass divided by molar mass. This total mass is given, है ना, given mass, या फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये फिक्स रहता है, तो ये दो, एक तरह से दो चीजें हैं, अगर ये दे रखा है तो ये मिल जाएगा, ये दे रखा है तो ये मिल जाएगा, एनीवे, ठीक है, राइट? सो दिस इज गोइंग टू बी योर, that's a formula. Now over here, if we are going to say, then we can say stoichiometry is 1 2 1 2, and what are the molar masses अगर हमें लिखना हो। स्टोकियोमेट्री मतलब मोल्स, है ना, मोल रिलेशन, दिस इज स्टोकियोमेट्री मतलब मोल मोल रिलेशन, राइट? वी कैन राइट स्टोकियोमेट्री कोएफिशिएंट, और दिस इज मोल मोल रिलेशन कि एक मोल दो मोल से रिएक्ट करके एक मोल दो मोल बना रहा है। वी कैन राइट द मोलर मासेस, मोलर मास फॉर CH4 इज 16, ठीक है। मोलर मास फॉर O2 इज, हम अभी 2O2 की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट O2, सो दैट इज 32, CO2 का 44 एंड वाटर का 18। तो मास क्या हो सकता है, मास मास रिलेशन क्या हो सकता है कि इसके एक मोल रिएक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब हम बोल सकते हैं 16 ग्राम मीथेन reacts with 32 into 2, so this is 64 gram O2 to form 1 into 44, so 44 gram CO2, and 18 into 2, that is 36 gram H2. So can you understand, this is the mass mass relation. What you have done, you have done moles into molar mass से multiply कर दिया, number of moles into molar mass, so mass relation मिल गया आपको। अब मैं बोलूं कि फाइंड, मान लो 10 ग्राम ये मीथेन कितने ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, तो आपको पता है 16 ग्राम 64 से करता है, तो 1 ग्राम 4 ग्राम से करेगा, 10 ग्राम 40 ग्राम से। डायरेक्टली यू कैन सॉल्व, आई बात समझ में है? यूनिटरी मेथड, पहले मास मास रिलेशन लिख लिया, फिर एक मास से दूसरे मास को कन्वर्ट कर लिया। इसमें कोई प्रॉब्लम, किसी को नहीं बात आ रही है समझ में, देन से यस। सबको आ गई समझ में?
कोई कुछ बोल नहीं रहा है। यस सर। यस हाँ, सर। तुमको इसलिए इन्वॉल्व इसलिए करता हूँ ताकि तुम सो ना जाओ बीच बीच में। हाँ ना लिखने से पता है क्या होता है? हाँ ना लिखने से लगता है कि आप लोग वहां पे हो, यू आर लिसनिंग, यू आर फोकसिंग, और अगर मैं पूछूं ही नहीं तो क्या होगा? हम बैठे हैं नहीं बैठे क्या पता, हमको समझ में आया नहीं आया क्या पता। तो इसलिए मुझे ये आंसर आते रहने चाहिए, बस 2-4 लोग ही देते हैं आंसर, ये प्रॉब्लम है। अब लेट्स से मान लो इसमें एक एग्जांपल लिख लेते हैं कि मान लो, चलो एग्जांपल नहीं क्वेश्चन में दे रहा हूँ, फाइंड अमाउंट ऑफ O2 required to burn 2.5 gram methane completely। तो क्या हो जाएगा आंसर? करेक्ट। ठीक है, तो अभी आ गए मेरे पास 4-5 लोगों के सबके आंसर सही है, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है। 5 ग्राम ऑफ O2 नहीं आएगा, अभी तो रिलेशन हमने बनाया है 16 से 64, तो 1 से 4, 2.5 से 10। नाइन 9.6 कैसे आ रहा है? 9.6 1.6 ये गलत है। 9.6 1.6 सर 3.5 आ रहा है। 10 आएगा ना भाई। 16 से 64 तो 1 से कितना होगा? किसका मास नोन है? मीथेन का। 16 ग्राम रिएक्ट करता है 64 ग्राम से, तो 1 ग्राम विल रिएक्ट विद 4 ग्राम, x ग्राम, 4x ग्राम, 2.5 10। सिंपल। सर हाँ हाँ बोलो। सर अमाउंट मतलब वॉल्यूम लेना, अमाउंट में तो वॉल्यूम लेना चाहिए ना। अमाउंट में जैसे कुछ भी आ सकता है अमाउंट में, ठीक है। वॉल्यूम भी आ सकता है, मास भी आ सकता है। अभी हम मास की बात कर रहे थे तो मास ही निकाल रहे हैं, ठीक है। लेकिन वॉल्यूम आप कैसे निकालोगे यहाँ पे, है ना? वॉल्यूम के लिए अभी हम आएंगे, अभी रिलेशन है दूसरा। मान लो क्वेश्चन अब मैं थोड़ा सा घुमा रहा हूँ, ठीक है, ये थोड़े इजी क्वेश्चन थे। मान लो क्वेश्चन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
ठीक है, तो आपको मास निकालना है। कह रहे हैं कि भाई COH होल ट्वाइस का न्यूट्रलाइजेशन H2SO4 से हुआ और 1 मोल जो है ना वो लगा है ना। 1 मोल को थोड़ा ट्रिकी बना देते हैं, 1 मोल थोड़ा आसान हो गया, देखते हैं। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, H2SO4 को H3PO4 कर रहा हूँ, लिटिल बिट डिफिकल्ट। चलो बताओ भाई, तुम्हारे को देता हूं मैं 3 मिनट्स, चलो 4 मिनट, 4 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व करो विदाउट एनी हिंट। देखते हैं कौन कर लेता है। ओके, आई गॉट वन आंसर। ठीक है, लेट मी चेक, बताता हूँ अभी सही है या गलत। गलत है आर्या। आपको लास्ट 1 मिनट बचा है, लास्ट 1 मिनट। हाँ करेक्ट, यस। ये नहीं तो गड़बड़ है। ये रौनक आपकी रिएक्शन सही है।
गलत कैसे इतना? ये ग्राम में कैसे आ गया? मोलर मास क्या है CaOH वोल्ट है इसका? ठीक है, चलो भाई लास्ट 1 मिनट खत्म हो गया और मुझे लगता नहीं है किसी का सही आंसर है। इसका मतलब है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी है। ये कभी नहीं आया बताओ। यस रौनक, करेक्ट। तो पहले तो बात यह है कि ये रिएक्शन लिखना आना चाहिए कि क्या है रिएक्शन, ठीक है। तो लेट्स से व्हाट इज द रिएक्शन यहाँ पे। So this is neutralization reaction, so that's why solution I am writing here. So the reaction is CaOH whole twice की reaction हो रही है H3PO4 से। तो एसिड बेस रिएक्ट कर रहे हैं, सॉल्ट बनेगा, क्या बनेगा? Ca3PO4 whole twice प्लस H2O। जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है हमेशा सॉल्ट बनता है, ठीक है। अब बैलेंसिंग की बात आती है, तो अगर आप इसको बैलेंस करोगे, है ना, यहाँ पे कैल्शियम 3 है और यहाँ पे PO4 वाला पार्ट 2 है, सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस, ये बैलेंस रिएक्शन। सो व्हाट इज द स्टोइकियोमेट्री? 3 2 1 6। क्या दे रखा है आपको? 2.4 मोल्स। तो पहला काम ये है आपको कि मोल रिलेशन लगा के हाउ मेनी मोल्स आर हियर यू हैव टू कैलकुलेट। सो लेट्स से गिवन है H3PO4, सो वी कैन राइट 2 से 3, तो 1 से क्या हो जाएगा? 3/2। That's it। 2.4 से कितना हो जाएगा? So 3/2 into 2.4, so which will come 3.6. Now 3.6 moles of CaOH whole twice are going to, let's say, neutralize. Then what is the mass? The mass of CaOH whole twice is going to be, कितना है इसका मोलर मास? मोल्स आपको पता है, that is number of moles into molar mass. So CaOH whole twice, calcium 40, oxygen 16 plus 1 17 into 2 34, so this is 74. So 74 into 3.6 करना था। So that will come right 266.4 ग्राम। भाई ये आंसर एक ही बच्चे का आया है बस। अब बाकी लोगों ने क्या गलती की देखो भाई, कहाँ उन्होंने गलतियां की, मोल को मास में कन्वर्ट किया, क्या नहीं किया। तो क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे घूमे हुए, है ना, एकदम लल्लू लल्लू क्वेश्चन नहीं आएंगे। लल्लू लल्लू क्वेश्चन केवल कॉन्सेप्ट के लिए है कि आप कॉन्सेप्ट लगा सको, टफ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ये हो गया आपका मोल मास 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 रिलेशन। अब नेक्स्ट आता है वॉल्यूम रिलेशन, मोल वॉल्यूम रिलेशन या वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन। जब हम बात करते हैं वॉल्यूम वॉल्यूम या मोल वॉल्यूम की, तो यहां पे मेनली ये किसके लिए? फॉर गैसियस स्पीसीज और रिएक्टेंट। तो जैसे मान लो एग्जांपल ले रहा हूं मैं, हाइड्रोकार्बन, मान लो मैंने लिया C3H8, इसको बर्न करा रहा हूं मैं, और यहाँ बन रहा है 3CO2 plus 4H2O. So this will come 5. So now I know this is gas, this is gas, this is gas, and this is liquid. So I'm not going to write volume relation for this H2O, क्योंकि ये किसके लिए? Only for gaseous species के लिए।
What is the stoichiometric coefficient? I can write 5, 1, 5, 3, 4. मोल रिलेशन भी मैं लिख सकता हूँ. That means nothing but stoichiometric coefficient is nothing but mole relation. So 1 mole, 5 mole. 1 mole is going to react with 5 mole, 3 mole, 4 mole. मास रिलेशन भी मैं लिख सकता हूँ, लेकिन अभी मैं वॉल्यूम रिलेशन के बारे में कैसे समझा रहा हूँ वो बता रहा हूँ. तो हमें पता है at STP 1 mole of gas is equals to 22.4 liter. So can we write volume is going to be over here, volume. Can we write this is going to be 1 into 22.4. This is going to be 5 into 22.4. This is going to be 3 into 22.4. और यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे क्यों, ये लिक्विड है. So this is dash, pass. ये मुझे रौनक क्यों भेज रहे हो कि गैस लिस्टेक्स लॉ क्या होता है? सर आपने गेल-लुसाक्स का वो डेफिनेशन लिखाया था, तो मैंने अभी देखा तो वो वॉल्यूम के लिए था, तो अभी मुझे पता चला कि वो वॉल्यूम के लिए था, और वो स्टोइचोमेट्री कांस्टेंट वो ऊपर मासेस और वो सब के लिए था. ये वॉल्यूम वाला रिलेशन देखो यहाँ बिल्ड कर रहे हैं. अभी अभी आपको दिखेगा कि कैसे स्टोइकियोमेट्री और वॉल्यूम सेम है. ठीक है, यही बात यहाँ बिल्ड कर रहे हैं. तो कैन आई राइट कि 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर, 5 मोल्स इक्वल टू 5 इंटू 22.4, 3 इक्वल टू 3 इंटू 22.4. ये कॉमन फैक्टर आ गया सब. तो क्या लिख सकते हैं हेंस कि अगर भाई 1 22.4 से रेट करके 5 इंटू 22.4 करेगा तो 1 से रेट करके 5 होगा. 22.4 से डिवाइड कर दो सब जगह. So another thing we are able to understand that कि जो ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ये मोल मोल रिलेशन ही नहीं है, ये वॉल्यूम रिलेशन भी है ना. कि अगर यहाँ पे 1 लीटर एक आया स्टोइकियोमेट्री मतलब ये 1 लीटर हो गया, ये 5 आया तो ये 5 लीटर हो गया, ये 3 आया तो 3. अब अगर मान लो आपको x पता है तो आप 5x निकाल सकते हो, 3x निकाल सकते हो, राइट. सो यू कैन राइट x liter is going to react with 5x liter to form 3x liter. Provided we are not going to write anything about जो भी लिक्विड है उनके लिए नहीं लिखेंगे. तो एक आप एग्जांपल करते हैं. Find volume of CO2 produced by burning 10 liter ethane, 10 liter ethane. Find volume of CO2 produced at STP by burning 10 liter ethane in excess oxygen. ठीक है, इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन यहाँ पे रोल नहीं आएगा, राइट. एक्सेस है वो. आपको इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना होगा कि इन दोनों के बीच में ईथेन के लिए आपको पहले रिलेशन लिखना है, व्हाट इज द रिएक्शन, है ना. एंड देन यू हैव टू आइडेंटिफाई कि भाई कितना CO2 प्रोड्यूस होगा. जल्दी से बताओ.
चलो भाई आंसर्स आए हैं, सबके सही हैं, वेरी गुड। तो ये आप देखो इसमें बहुत आसान था ये। अब यहाँ पे क्या करना था, मैं बस इथेन के लिए रिएक्शन लिखनी थी। अब यहाँ पे C2 है तो यहाँ पे 2CO2, बाकी हमें कुछ ध्यान देना ही नहीं था। हम बैलेंस कर लेंगे वेल एंड गुड, राइट। इसको बैलेंस कर लेंगे हम, वेल एंड गुड हो जाएगा हमारे लिए। ये 7/2 है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या 2C2H6 भी लिख सकते हैं, डजेंट मैटर। सिंपल सी बात ये है कि क्या रिलेशन है यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री, कि यहाँ पे C2H6 में 2 कार्बन है, तो यहाँ पे अगर ये 1 होगा तो यहाँ 2 होगा, अगर आपने मल्टीप्लाई किया है 2 से तो यहाँ 2 होगा तो ये 4 हो जाएगा। एनीवे स्टोइकियोमेट्री इज 1 2, 1 लीटर से 2 लीटर, तो 10 लीटर से 20 लीटर। तो ट्रिक क्या है, डायरेक्टली अगर CO2 पूछा गया है आप यही देख लो, यहाँ पे कितना है 2 है, तो 1 से 2 बनेगा, 10 से 20 बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया? हाँ जी हाँ जी, ना जी ना जी, सर यस। चलो एक बार वापस एक्सप्लेन करो ना। ये रिएक्शन हो गई बैलेंस, ठीक है। इसमें मैंने 7/2 लिखा है, तो डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि मैं लिख सकता हूँ फ्रैक्शन में भी स्टोइकियोमेट्री, है ना। अभी हम यहाँ पे फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, क्यों, हम कैलकुलेशन कर रहे हैं इसलिए, हमें तो बस कैलकुलेशन से मतलब है इसलिए, राइट। तो 1 से बना 2, तो 1 लीटर से बना 2 लीटर, 10 लीटर से बना 20 लीटर, बस सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है सर। अब ये मैंने तीनों अगर मैं मिला दूं, है ना, नाउ इफ आई एम गोइंग टू लेट्स से मिक्स्ड ऑल 3 कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो लेट्स से क्या करना है। सो अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, इफ, थोड़ा सा अगेन टफ हो जाएगा, इफ ए हाइड्रोकार्बन of vapor density 28, है ना, burn in excess of O2, find a molar mass of hydrocarbon, B molecular formula of hydrocarbon। हाइड्रोकार्बन का मतलब ये है एल्कीन, ठीक है, यहाँ हिंट दे देता हूँ, आप लोग और इधर उधर भटको ना, इसलिए सॉरी, इट इज नॉट गोइंग टू बी एल्केन, इट इज एल्कीन, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन, C, if 3 moles of, है ना, हाइड्रोकार्बन burn completely, find, है ना, C में find moles of CO2 moles and mass of CO2 produced। D, if 10 liter oxygen is supplied only, है ना, sorry 12 liter, if 12 liter oxygen is supplied only, find volume of hydrocarbon at STP will react completely। चलो भाई, ये दो पहले कुछ 2 क्वेश्चन तो आसान है, बाकी 2 में हमने यहाँ पे लगा दिया है मोल मोल रिलेशन, मोल और मोल मास रिलेशन, और यहाँ पे है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन। तो जल्दी से बता दो भाई, आंसर इजी है वैसे। हाँ करेक्ट रौनक।
नहीं रौनक तुम्हारा आंसर गलत है। एक मिनट मैंने, हाँ जी गलत है। सेकंड फॉर्मूला गलत है। करेक्ट है इजल, फर्स्ट सही है। करेक्ट सोहम, करेक्ट यशस्वी, फर्स्ट सही है फर्स्ट। करेक्ट कोयना, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट। करेक्ट रौनक, सेकंड सही है। करेक्ट गौरव, करेक्ट यशस्वी, करेक्ट रौनक, ठीक है रिएक्शन। क्वेश्चन में कितने मोल्स दे रखे हैं C4H8 के? So apply here. करेक्ट कोयना। बाकी लोगों का पहला भी आंसर नहीं आ रहा है, कहाँ है आयुष? कहाँ गायब हो गया ये लड़का? वंश, विदेश, एक बेटा सो रहे हो क्या आप लोग? मयंक कहाँ हो? ढूंढना पड़ रहा है तुम्हें। श्रुति, कोई आंसर नहीं है आपका। ऋषिकेश, प्रांजल, मायरा, हितेन, हर्ष, गौरव, गौरव का आंसर है एक। दुर्गेश, दुर्गेश के बारे में तो पता भी नहीं है, इसने कभी पूछा भी नहीं है कुछ। देव, विदिता, भावेश, आर्यन, अपूर्व, अपेक्षा, आए आपके आंसर? कोई तो आंसर दो। करेक्ट गौरव। क्वेश्चन नहीं समझ रहा तो बोलो ना, तो समझाएंगे भाई हम। क्या कर रहे हैं आप बैठ के? बताओगे नहीं? मैंने क्या बोला? एक कोई हाइड्रोकार्बन है जिसकी वेपर डेंसिटी 28 है। वेपर डेंसिटी वाला फॉर्मूला याद है? दैट इज मोलर मास डिवाइड बाय 2।
उससे आपको मोलर मास मिल गया। अब मोलर मास आ गया आपका 56, तो ये सॉल्यूशन भी हो गया। ठीक है, अब ये मोलर मास आपका आ गया 56। क्यों? क्योंकि वेपर डेंसिटी होता है मोलर मास डिवाइड बाय 2। ये 28 है तो ये आ गया 56। अब मैंने यहाँ हिंट दिया भी था, एल्कीन है ये, तो एल्कीन का मतलब CnH2n है। अब आपको सोचना है कि 56 कैसे हो जाए मोलर मास, तो आप लिखते जाओ जो आपको एल्कीन पता है, C2H4, C3H6, C4H8, कौन सा फिट हो जाता है, C5H10। तो इसका कितना आया C2H4 का 28, इसका कितना आया 44, इसका कितना आया 58। करेक्ट, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब जैसे ये हो गया, अब हमने रिएक्शन लिखना चालू कर दी। तो रिएक्शन क्या होगा, C4H8 plus O2 gives CO2 plus H2O। जितने कार्बन है आंख बंद करके उतने ही लिख दो। यहाँ 4 कार्बन है तो 4, हाइड्रोजन 4 है तो 4, ऑक्सीजन काउंट कर लो 8 + 4 12, तो आ गया 6। ये हो गया आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 6 4 4। एनीवे वी डोंट केयर अबाउट दिस। नाउ दे आर सेइंग कि 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन है, बताओ मोल और मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस। तो क्या हो जाएगा, 1 से प्रोड्यूस होगा कितना 4, 3 से कितना होगा प्रोड्यूस 12। बस आंसर। आसान है डिफिकल्ट है? क्वेश्चन आसान है। 12 मोल्स ऑफ CO2, 1 से बना 4, 3 से बनेगा 12। बस मास ये क्या आ गए, मोल्स आ गए, तो लिख लो। अगर आपको गलतियां करते हो आप, तो आप लिख लो मोल्स, आपको याद नहीं रहता हो। अगर आप गजनी हो तो आप लिखते जाओ, है ना, बीच बीच में आप भूल जाते हो तो आप लिखते जाओ बस। मोलर मास कितना हो, तो मास ऑफ CO2 कितना हो गया, मास ऑफ CO2 12 मोल है, मोलर मास है 44, मल्टीप्लाई कर लो 440 + 88 कितना हो जाएगा 528 ग्राम। ये सी हो गया। डी, अब इसी क्वेश्चन में मैंने बोला कि मान लो 12 लीटर मैंने O2 दिया है, बताओ यहाँ कितना लीटर बर्न होगा। तो आपको पता है स्टोइकियोमेट्री 16, तो 1 लीटर रिएक्ट करता है 6 लीटर से, तो 12 लीटर कितने से रिएक्ट करेगा, 2 लीटर से। बस हो गया खत्म काम, आपका आंसर। अब ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया और इसका सॉल्यूशन नहीं समझ में आया तो बताओ कोई। इस क्लास में अभी जब मैंने पहला लेक्चर लिया था तब एक भी बच्चा नहीं बोल रहा था, सब डरे सहमे बैठे हुए थे। अब जाके 6-7 बच्चों का, है ना, एक पूल बना है जो लगातार क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और बता रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। अभी भी इस पूरी क्लास में 27 बच्चे हैं, उनमें बाकी 20-21 बच्चे, 20 में से 10 तो कभी कभी बोलते हैं, बाकी 10 का पता ही नहीं है। और जो 10 नहीं बोल रहे हैं वो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ कि आप पीछे हो जाओगे। मैं नहीं चाहता हूँ ऐसा, लेकिन आप हो जाओगे, क्योंकि आप ना तो इंटरेक्ट कर पा रहे हो, ना ही आप उसमें अपने आप को कॉम्पीट कर पा रहे हो, ना ही आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस ग्रो हो रहा है, ना ही आप रिवाइज कर रहे हो। तो अगर आपको ये बात पता है ना, जैसे लोगों को पता होता है कि अगर हम, है ना, जब मतलब नॉर्मली लोगों को पता है ये हार्मफुल है तो वो रुक जाते हैं कि ये चीज़ हार्मफुल है हमारे लिए, हमारे करियर के लिए, एंड दे अंडरस्टैंड दिस कि यार नहीं, हमें ये नहीं करना। और आप अगर तब भी कर रहे हो, इसका मतलब है कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, you are not interested. So all these things lead to one another thing. मैं बोल रहा हूँ जिन बच्चों को, जो बच्चे इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो पीछे रह जाएंगे, एंड डोंट से कि हमें फिर समझ में नहीं आया, हमसे नहीं हुआ, तो फिर मैं अभी आज मैं तुम्हें पकड़ रहा हूँ क्योंकि मेरे को लगता है शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। 2 महीने बाद थोड़ी ना मैं तुम्हें ऐसे ही पकड़ते रहूंगा, मुझे लगेगा तुम्हें नहीं पढ़ना है इसलिए तुम नहीं पढ़ रहे हो। मैंने अपनी तरफ से जितनी मेहनत करनी थी, कोशिश करनी थी कि तुमने तब भी नहीं पढ़ा, तो फिर मैं थोड़ी ना पकड़ते रहूंगा तुम्हें बैठ के। तब तुम मुझसे पूछोगे तो मैं बताऊंगा, है ना, जब आओगे तुम मेरे पास। लेकिन मैं फिर चल के तुम्हारे पास ऐसे 10 बार तुम्हें पोक करने नहीं आऊंगा। तुम मुझसे दूर भागोगे, मैं तुमसे दूर भाग जाऊंगा। सिंपल है ना। स्कूल में होता था ना कि टीचर से बच्चे भागते थे, यहाँ उल्टा है, कोचिंग में टीचर बच्चों से भागते हैं।
ठीक है, समझ में आया? राइट। कितने लोगों को कोचिंग का एक्सपीरियंस है, कॉम्पिटिटिव कोचिंग का? कोई है? नहीं है? हाँ, देन यू कम टू नो दिस पार्ट। और कॉलेज में और भी अच्छा होता है। कॉलेज में क्या होता है, कॉलेज में क्या होता है, टीचर कभी भी बच्चों के पीछे पड़ते ही नहीं है। दे ऑलवेज, वो भागते ही रहते हैं। कॉलेज में आओगे, टीचर पहली बात तो तुम्हें एंटरटेन ही नहीं करेगा, भगा देगा, भाग यहाँ से। पहली बात, उसको पता है यहाँ पे बच्चा पढ़ने आएगा तो वो पढ़ के दिखाएगा, है ना। they believe in, first they believe in result, then they will entertain. पहले वो तुम्हारी मेहनत देखेंगे, फिर तुम्हें एंटरटेन करेंगे। उल्टा नहीं, जैसे यहाँ नहीं, यहाँ पे हम सपोर्टिव हैं, मच मोर सपोर्टिव। तो वहाँ पे अगर हम 100 का बैच होगा तो 95 बच्चे तो बस ऐसे ही टाइम पास करते हैं, ठीक है, इट्स फिक्स इनका। इसीलिए तो बोलते हैं कि इंजीनियर्स आजकल, है ना, जॉब नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो 95 जो हैं, 90 to 95 बच्चे, दे आर नॉट फोकसिंग ऑन स्टडी, दे आर फोकसिंग ऑन अदर थिंग्स बट नॉट स्टडी। मैं बुरा नहीं बोलूंगा ऐसा कि ये खराब है, सही है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एवरीवन नोज कि व्हाट दे वांट टू डू इन देयर लाइफ। इसीलिए फिर बाकी जो 5 बच्चे होते हैं, टीचर कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता, और वो समझाते भी नहीं, कहते हैं ये किताब ले लो, खुद पढ़ लो अपने आप, है ना। तो जो ये हाथ में अभी आपको मुंह में लड्डू मिल रहे हैं ना, बिल्कुल जैसे पकड़ के हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं, एक बार बता रहे हैं, ये नहीं होगा। इसकी हैबिट आपको डालनी पड़ेगी। बोल दिया जाएगा ये पेज, ये बुक ले लो, खुद पढ़ लो, दैट्स इट। किसी ने सुना है ऐसा? किसी के बड़े भाई बहन हो, उन्होंने बताया हो कैसी पढ़ाई होती है कॉलेज में, क्या करना होता है? राइट, एनीवन? So you have to be mentally prepared for that. ठीक है, अगर आप if you dream about like building something, जैसे इंडिया में अभी मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा सा वीक है, right? We are way behind in manufacturing, and now is the time where government is also pushing and people are also getting innovative. तो वो innovation, है ना, मैन्युफैक्चरिंग अगर इंडिया में हो जाएगा तो यू विल सी, राइट नाउ यू आर सीइंग अ मिलेनियर, ऑल दोस थिंग्स व्हिच आर इन इंडस्ट्री, जो दोस आर गिविंग द इंडस्ट्री लाइक द सर्विसेज, वो मिलेनियर है। तो लोगों का जो है ना इंटरेस्ट उधर ही है। लोगों का इंटरेस्ट है कि यार बस हम अपना कोडिंग करेंगे, सर्विस इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, कंसल्टेंसी में जाएंगे, लाइक दैट। क्योंकि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग पुअर है, बट इफ दिस पाथ विल कंटिन्यू बी लाइक दिस, है ना, तो आप 10 साल में देखोगे लोग, है ना, 10 इयर्स में, कि मैन्युफैक्चरिंग वाले बिलियनियर बनने लग जाएंगे। आप बड़ी बड़ी कंपनियों के, इंडियंस के मालिक देखोगे और वो बिलियनियर होंगे। और आपको ये समझ लो कि अगर आप 10 इयर्स में आपको पहुंचना है, तो आपके पास 2 साल तो इधर ये गए, 4 साल कॉलेज में गए, राइट? 6 years are already there. So when you will come out, there is already going to be a atmosphere जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग चल रहा होगा। People are building the plants. आसान होता है बहुत, प्लांट्स बिल्ड करना बहुत आसान होता है। मतलब ऑब्वियसली बिगर लेवल पे नहीं, लेकिन छोटे लेवल पे आप आसानी से बिल्ड कर सकते हो। कहीं से पे लैंड ले लो, आउटर में मशीन लगाओ, लगातार चलाते रहो, राइट? तो अगर 6 years में आप जब निकलोगे और आप टेक्निकली साउंड हो, you understand better, you understand all the electrical mechanical part better, then obviously you are going to excel, you are going to, let's say, lead the growth. हो सकता है in the upcoming 10 or 15 years you will be supplying certain parts to Audi or some let's say bigger brand. ऐसा हो सकता है, this is completely possible. but उसके लिए क्या होना चाहिए? आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। right now the everyone is like कि यार हम कुछ करेंगे, हम कुछ एकदम अच्छा कर देंगे, but they lack in the basic thing कि उनको करना क्या है, right? they don't know कि करना क्या है, but किसी से पूछोगे तो कहेंगे हाँ फोड़ देंगे हम, बस अभी फोड़ देंगे सब कुछ। so the thing is the clarity is not there, that's why you cannot do anything. केवल बातें हो सकती हैं उससे, ठीक है? so build clarity, शुरुआत से ही अंडरस्टैंडिंग रखो, मेहनत करो, ये जरूरी होता है यार फ्रॉम द बिगिनिंग।
एनीवे चलो ये सब बातें तो होती रहेंगी। तो ये है मूल मूल रिलेशन, मूल वॉल्यूम रिलेशन, मूल मास रिलेशन। ये स्टोइकियोमेट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, मैंने कुछ क्वेश्चन करा दिए हैं। अब हम आगे चलते हैं कुछ और तरह की चीजें। तो इसमें आता है, नेक्स्ट है लिमिटिंग रिएजेंट। अब लिमिटिंग रिएजेंट वाले क्वेश्चन कब आते हैं? जब एक रिएक्टेंट अभी दे रखा था, हमने दूसरे रिएक्टेंट के बारे में पूछा, ऑल इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड विद, एक दे रखा है तो दूसरा बताओ कितना लगेगा, या फिर एक दे रखा है तो कितना फॉर्म होगा, है ना। लिमिटिंग रिएजेंट इज जब हमें दो रिएजेंट दे रखे हो या दो से ज्यादा, है ना, एन टू और मोर reagents are given in question. ठीक है, and two or more reagents, है ना, are given in question. reagents का मतलब क्या होता है? रिएक्शन स्पीसीज, है ना, क्या है, रिएक्टेंट है, कुछ भी है ना। टू और मोर रिएक्टेंट लिख लेते हैं, टू और मोर रिएक्टेंट आर गिवन इन क्वेश्चन, ठीक है। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं, ठीक है, मान लो कॉफी, एक परफेक्ट टी बनाने के लिए मुझे 2 कप मिल्क और 1 कप वाटर चाहिए। मान लो ये परफेक्ट 2 कप टी बनाने के लिए मुझे ये सब चाहिए, ठीक है। ये एक रिलेशन हो गया, मतलब कि मतलब ये ऐसा हो गया, तो ये स्टोइकियोमेट्री हो गई, 2 1 2 लाइक दैट। अब मान लो किसी ने बोला है कि मेरे पास 10 कप तो मिल्क है और 100 कप वाटर है, ठीक है, तो बताओ कितनी टी बनेगी। तो दो इंफॉर्मेशन दे रखा है यहाँ पे, हमें मिल्क के बारे में भी दे रखा है 10 कप, और हमें वाटर के बारे में भी दे रखा है, दैट इज 100 कप, और पूछा गया बताओ कितनी टी बनेगी। तो अगर इंडिविजुअली दिया होता, मान लो ये नहीं दिया होता, है ना, तो आप बोलते 2 से बनता है 2, तो 10 से बनेगा 2, सॉरी 10 से बनेगा 10, ठीक है। या फिर ये नहीं दिया होता, केवल ये दिया होता, तो आप बोलते 1 से बनता है 2, तो 100 से बनेगा 200, बट दोनों साइमल्टेनियसली दे रखे हैं। तो आपको अब जज करना पड़ेगा कि कौन पहले खत्म हो जाएगा, और जो पहले खत्म हो जाएगा तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। भाई केवल पानी से तो थोड़ी ना टी बन जाएगी। समझ में आ रही है बात, राइट? ये बात समझ में आ रही है। नाउ यू हैव टू चेक विच इज गोइंग टू कंज्यूम फर्स्ट, विच इज गोइंग टू कंज्यूम फर्स्ट। तो 2 से 1 रिएक्ट करता है तो 10 से 5 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये खत्म हो जाएगा। जब भी दो रिएजेंट दे रखे होंगे, 2 रिएजेंट के बारे में या 2 से ज्यादा रिएजेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, देन यू हैव टू चेक कि कौन सा ऐसा रिएजेंट है जो रिएक्शन को लिमिट कर रहा है, या जो रिएक्शन को स्टॉप कर रहा है, या जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन स्टॉप कर रहा है, या उसको बनाने को लिमिट कर रहा है, उसकी क्वांटिटी, उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। क्यों? क्योंकि जब ये मिल्क खत्म हो गया, उसके बाद कितना भी पानी रख लो आप, 100 कप रख लो, 200 कप रख लो, 1000 कप रख लो, उससे टी नहीं बनेगी, ठीक है। वो दैट इज गोइंग टू डिपेंडेंट ऑन मिल्क, जितना मिल्क है उतनी ही टी बनेगी। सो दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। समझ में आया? नहीं समझ में आया से नहीं आया, से अगर समझ में आया देन से यस। जल्दी बताऊं हाँ ना, तो मुझे तो समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हाँ सर समझ रहे हैं। यस सर, यस सर, ओके यस सर। ठीक है, तो चलो आप समझते हैं इसको केमिकल भाषा में, है ना, केमिकल। तो एग्जांपल ले लेते हैं, पहले तो डेफिनेशन लिख लेते हैं। So hence limiting reagent is a reagent which limits product formation and gets consumed
first during the reaction. तो इसी में दूसरा होता है excess reagent. ठीक है, excess reagent is reagent which is left after the reaction, left unreacted after the reaction. तो ये बचा रह जाएगा, तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, excess reagent बोल रहे हैं. अब let's say example, मान लो N2 plus 3H2 हमने ले लिया, एंड यहाँ पे गिवन मोल्स हैं. इफ लेट्स से क्वेश्चन ऐसा है, एग्जांपल, if 2 moles of N2 and 5 moles of H2, तो आपको यहीं पे समझ में आ गया. अच्छा, N2 और H2 दोनों के बारे में दे रखा है, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट है. 5 moles of H2 are taken initially. Find moles of ammonia formed. मान लो ये क्वेश्चन है, तो इसको कैसे करेंगे? पहले तो मैं जनरल मेथड बता रहा हूँ, है ना, फिर मैं एक ट्रिक भी बता दूंगा. तो जनरल मेथड ये है कि भाई हम पहले लिख लेंगे इसकी स्टोकियोमेट्री. N2 plus 3H2 gives 2NH3. इसका मतलब ये है कि 1 मोल 3 मोल से रिएक्ट करेगा. नाउ यू हैव टू थिंक कि इनमें पहले खत्म कौन हो रहा है. तो लेट्स से ये अज्यूम कर लो कि ये पहले खत्म हो रहा है. लेट्स अज्यूम इट कि दिस इज गोइंग टू गेट्स कंज्यूम फर्स्ट. तो 1 मोल 3 मोल से रिएक्ट करता है, तो 2 मोल, मतलब लेट्स से मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, अज्यूम N2 is limiting reagent. Just assume, ठीक है, N2 is limiting reagent. तो N2 पहले खत्म होना चाहिए, ये हमारा assumption है. तो 2 मोल कितने से रिएक्ट करेगा? 6 मोल से रिएक्ट करेगा. 2 मोल को खत्म करने के लिए कितने मोल होने चाहिए? 6. अगर N2 लिमिटिंग रिएजेंट है तो H2 क्या हो जाएगा? H2 विल बी एक्सेस रिएजेंट, मतलब वो बचा रहना चाहिए इस रिएक्शन के, इसके खत्म होने के बाद भी ये बचा होना चाहिए. तो बताओ, यहाँ 5 मोल है, यहाँ पे चाहिए 6 मोल, तो क्या ये बचा रहेगा? तो नहीं. सो 2 मोल्स शुड बी रिएक्टिंग विद 6 मोल्स, हेंस, है ना. और इसको लिख सकते हैं, बट ओनली 5 मोल्स आर गिवन, 5 moles of H2 are given. Hence, our assumption is wrong. सही है. बात कितने लोगों को समझ में नहीं आई? अपोजिट, इसको नहीं आई है बात समझ. राइट भाई, 1 मोल 3 मोल से रिएक्ट करता है, तो 2 मोल 6 से करेगा. मैंने N2 को लिमिटिंग रिएजेंट लिखा है, तो H2 एक्सेस रिएजेंट होना चाहिए. H2 एक्सेस रिएजेंट का मतलब है, अगर यहाँ 7 मोल होते, है ना, अगर क्वेश्चन में 7 मोल दिए होते तो मेरा अजम्पशन सही हो जाता. क्यों? 2 से रिएक्ट करेगा 6, तो हमें दिए कितने? 7 मोल्स. इसका मतलब है अभी भी 1 मोल बच गया, तो अजम्पशन सही होता. अभी क्या है, ये अजम्पशन गलत हो गया, क्योंकि 5 ही मोल H2 के दे रखे हैं. इसका मतलब ये है कि H2 तो बचा नहीं रहेगा. H2 is not excess reagent, और you can say our assumption is wrong. तो क्या लिख सकते हैं? That means, है ना, that means उल्टा है, जो हमने सोचा है उसका उल्टा है. That means H2 is limiting reagent. अब अगर H2 लिमिटिंग रिएजेंट है, राइट, तो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो किसके मोल्स के हिसाब से होगा? 1 मोल मतलब 2 मोल्स ऑफ N2 के हिसाब से होगा, या 5 मोल्स ऑफ H2 के हिसाब से होगा? 5 मोल्स ऑफ H2. मैंने बताया था कि जो टी बनेगी वो 10 कप मिल्क से बनेगी या 100 कप वाटर से बनेगी. 10 कप जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसके हिसाब से.
तो यहाँ पे लिख सकते हैं, तो आप फिर से लिख लेते हैं N2 3H2 gives 2NH3 है ना। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 1 3 2। आप बोल सकते हो भाई 3 से बनेगा 2 मोल्स, तो 1 से बनेगा 2/3, तो 5 से बनेगा 5/3, सॉरी 5 into 2/3, so 10/3 आंसर। पहले अज्यूम किया था ये पता लगाने के लिए कि जो N2 हम जो सोच रहे हैं वो सही है या नहीं है, तो वो गलत निकला तो उल्टा मान लिया कि अब H2 लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। ये अगर गलत, ये सही निकलता तो N2 ही लिमिटिंग रिएजेंट होता। ये गलत निकल गया, इसका मतलब क्या है, अपोजिट सही होगा। अपोजिट क्या है H2। अब यहाँ देख लो, इसमें ये भी आता है कि कितना N2 रिएक्ट किया और कितना लेफ्ट हो गया, है ना। मान लो इसी में बी पार्ट है, हाउ मच X's reagent reacted and how much X's reagent left after reaction. So you can think कि N2 plus 3H2 है, 3 मोल से 1 मोल रिएक्ट कर रहा था, तो 5 से कितना रिएक्ट करेगा 5/3, मतलब 1 से कितना करेगा 1/3, तो 5 से कितना करेगा 5/3। तो मोल्स ऑफ N2 रिएक्टेड कितना हो गया 5/3। मोल्स ऑफ N2 लेफ्ट कितना हो जाएगा, N2 लेफ्ट अनरिएक्टेड, दैट इज हमने 2 मोल लिए थे, 5/3 रिएक्ट कर गए, तो कितना बचा 1/3 बच गया। समझ में आया। लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट, Yes. तो ये लिख लो ये बात। सर एक्सेस रिएजेंट के डेफिनेशन पे एक्सेस रिएजेंट की डेफिनेशन है जो रिएक्शन में बच जाए, है ना। थोड़ा सा और ले लेते हैं ऊपर।
चले आगे, ठीक है, अंडरस्टूड, ये सब हो गया। अब समझते हैं अब समझते हैं ट्रिक, ठीक है। ये तो एक तरीका है, लेकिन ये थोड़ा सा हो सकता है लेंदी है और हो सकता है आपको नहीं भी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। तो इसमें आएगा दूसरा, दैट इज ट्रिक। व्हाट इज अ ट्रिक? चलो ट्रिक में समझते हैं। ट्रिक में ये है, विल राइट मोल कॉन्सेप्ट, मोल मोल रिलेशन जो हमने पहले लिखा है उसको लिखेंगे। So what is the stoichiometry? 1, 3, 2 and moles given, that is 2, 5 over here, ठीक है। ये इसके मोल्स दे रखे थे। तो ट्रिक ये है, you have to write moles given divided by stoichiometric coefficient। ये आपको निकालना है, moles given divided by stoichiometric coefficient। तो क्या होगा, 2/1, ये आएगा 5/3। समझ में आ रहा है? ये स्टोइकियोमेट्री लिख लिया, मोल्स गिवन इन क्वेश्चन, है ना। ये 2 और 5 ये क्वेश्चन में दे रखे हैं। अब हमने क्या किया, मोल्स गिवन डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्री। जनरली हम डायरेक्टली ये लिखते हैं क्योंकि ये हमें पता होता है स्टोइकियोमेट्री यहाँ क्या है, मोल्स गिवन भी क्वेश्चन में दे रखा होता है। तो इट इज गोइंग टू बी लेट्स से इट इज नॉट गोइंग टू कंज्यूम टाइम, है ना, जल्दी हो जाएगा। 2/1, 5/3 एंड विच एवर इज मिनिमम, दैट इज अवर लिमिटिंग रिएजेंट। जिसकी भी वैल्यू कम आएगी वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। क्यों? क्योंकि मोल रिलेशन में हमने क्या किया है, मोल्स डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ही तो किया था। मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए, मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी। तो जो कम है वो सबसे पहले खत्म हो रहा है, ठीक है, जो कम है वो सबसे पहले खत्म हो रहा है। अब हमारे बाकी दो क्वेश्चन के, मान लो बताओ अमोनिया कितना बनेगा। सो नाउ वी विल अप्लाई मोल मोल रिलेशन विद रेस्पेक्ट टू मोल मोल रिलेशन with respect to H2। तो आपको पता है यहाँ पे moles of hydrogen divided by stoichiometric coefficient is moles of ammonia formed divided by stoichiometric coefficient। ये वैल्यू ऑलरेडी हमने यहाँ लिखी हुई है 5/3, so we don't have to write again। so ये 5/3 है, which is equals to moles of ammonia नहीं पता है, निकालना है। So again you can write divide by 2, so this is going to be 2 into 5/3, 10/3। Hence moles of NH3 कितने हो जाएंगे, 2 into 5/3, that is 10/3। अब दूसरा, अगर मान लो ये निकालना हो बी पार्ट कि कितने मोल्स NH3 के रिएक्ट किए गए, तो हम लिख लेंगे मोल्स ऑफ NH3 रिएक्टेड, सॉरी मोल्स ऑफ N2 रिएक्टेड डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 इज इक्वल्स टू 5/3। ये ऑलरेडी पता है हमें। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 5/3। तो मोल्स ऑफ N2 रिएक्टेड कितने आ गए, moles of N2 unreacted और left, that is 2 minus 5/3 is 1/3। आया समझ में? आसान है। Yes, sir. ये लिख लो, ये लिख लो, आज के लिए यही है। तो अभी आज आप पुराना होमवर्क करके लाओ सारे लोग, और जो लोग नए लोग हैं वो उनके लिए नया होमवर्क है, मतलब सॉरी जिन लोगों ने कर लिया उनके लिए नया होमवर्क है। तो होमवर्क, ठीक है। अब आप स्टोइकियोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस आप कर सकते हो। तो मुझे मॉड्यूल देखना पड़ेगा एक बार, मैं देख रहा हूँ, तब तक आप लोग नोट डाउन करो। सर नया वाला होमवर्क भी करना पड़ेगा ना? और क्या, पुराना वाला तो आपको करना ही है। दस क्वेश्चन दूंगा बस मैं, ओनली 10 क्वेश्चन, ठीक है।
So all these things are given at page number 123 onward, 124 है ना. तो अभी जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ वो है पेज नंबर 27 पे, 127. So 45 to 53 बस ये क्वेश्चन करने हैं आपको. 45 to 53. लो ये ओके भी लिख दिया इसने. ठीक है, ये बस 9 क्वेश्चन है, 9 ही क्वेश्चन दिए हैं मैंने. ओके यशस्वी. ओके चलो ठीक है, लिख लिया, मैं स्टॉप कर रहा हूँ.